फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट लेक्चर, जिसपे हम आज पढ़ने वाले हैं नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, जिसका हम आज सेट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेट 1 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। First question is the four elements called Big Four which make up 95% of all elements found in living system. Option A C H O N यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, ऑप्शन बी इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ऑप्शन सी इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या फिर ऑप्शन डी इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। Next question, the sum total composition of acid soluble and acid insoluble fraction represent the entire empirical composition of dash. Option A dead cells, option B gene pool, option C cellular pool, या फिर option D gene library. And the right answer is option C cellular pool. Next question, biomolecules are dash. Option A inorganic materials, option B organic materials, option C all the carbon compound obtained from living tissues, या फिर option D all of these. And the right answer is option C all the carbon compound obtained from living tissues. Question number 4, an amino acid is an dash. Option A substitute methane, option B substitute ethane, option C any acid having amino group, option C derivative of indole acetic acid. And the right answer is option A substitute methane. Question number 5, in order to produce amino acid from methane, how many substituents should occupy the valency composition of the carbon? Option A 1, option B 3, option C 2, या फिर option D 4. And the right answer, as you can see, is option D 4. Question number 6, protein amino acids are called dash. Option A alpha amino acid, option B बीटा अमीनो एसिड, ऑप्शन सी गामा अमीनो एसिड, या फिर ऑप्शन डी डेल्टा अमीनो एसिड. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अल्फा अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्साइल ग्रुप इन एन अमीनो एसिड इज नेवर डैश. ऑप्शन ए 1 and 1, ऑप्शन बी 2 and 1, ऑप्शन सी 3 and 1, या फिर ऑप्शन डी 1 and 2. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 and ऑप्शन सी 3 and 1. Question number 8, the physical and the chemical properties of amino acids are essentially of the dash. Option A only amino group, option B only the carboxyl group, option C only the R functional group, या फिर option D amino carboxyl and R group. और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है amino carboxyl and R group. Question number 9, which of the group in amino acid make them unique? Option A R group, option B NH2 group, option C COOH group, या फिर option D none of these. And the right answer is option A R group. Question number 10, there are many amino acids on the basis of dash. Option A NH2 group, option B COOH group, option C R group, या फिर option D none of these. And the right answer is option C R group. Question number 11, based upon the number of NH2 and COOH amino acid are dash. Option A 3 types, option B 2 types, option C 4 types, या फिर option D 20 types. And the right answer is option C, option A 3 types. Question number 12, the charged molecule which is electrically neutral is known as dash. Option A amide, option B amino acids, option C zwitter ion, या फिर option D polar amino acid. And the right answer is option C zwitter ion. बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ अमीनो एसिड यूनिवर्सली यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस आर डैश. ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 64, और ऑप्शन डी इज 61. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20. इसे प्रोटीन सिंथेसिस में यूनिवर्सली यूज्ड अमीनो एसिड 20 है. इन्हें मैजिक 20 भी कहा जाता है, जिससे जो अलग अलग तरह से मिलकर हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन आ सेल? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी DNA, या फिर ऑप्शन डी mRNA. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन्स.
Question number 15. Which of the following are physically and chemically the most diverse in cells? Option A proteins, option B DNA, option C RNA या फिर option D न्यूक्लियोटाइड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 16. All are proteins except option A receptors plus insulin, option B antibody plus trypsin, option C glut या plus glut minus 4 प्लस ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी इज COQ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी COQ। ये प्रोटीन नहीं है, बाकी जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, ट्रिप्सिन जो एक एंजाइम है, ग्लट जो एक एंजाइम है, और ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर्ड फूड है, और रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इंसुलिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का एक हार्मोन है, ये सारे ही प्रोटीन्स है। बाकी COQ ये एक प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17. क्वेश्चन नंबर 17. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू डैश। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी सल्फर ब्रिज या फिर ऑप्शन डी आयोनिक बॉन्ड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following biomolecule will be different in different animals? Option A lipids, option B vitamins, option C carbohydrate, option D proteins। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स डिफर करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि बहुत टाइप ऑफ प्रोटीन्स मिलकर, अमाइनो एसिड मिलकर बहुत टाइप ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डैश। ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी carbohydrates and lipids, और ऑप्शन डी है all of these, and the right answer as you can see is option D all of these। Question number 20. The dash structure of a protein relate to how separated polypeptide assemble together। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी या फिर ऑप्शन डी टेट्ररी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेट्ररी। Question number 21. An alpha helix is the example of protein structure dash। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शियरी या फिर ऑप्शन डी टेट्ररी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी। विच इज द हाईएस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन ऑल एंजाइम्स। ऑप्शन ए सेकेंडरी, ऑप्शन बी वन प्राइमरी, ऑप्शन सी टर्शियरी या फिर ऑप्शन डी टेट्ररी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टर्शियरी। क्वेश्चन नंबर 23. लिपिड्स आर डैश। ऑप्शन ए insoluble in water, ऑप्शन बी रेडियली soluble in organic solvent, ऑप्शन सी important constituent of biological membrane या फिर ऑप्शन डी all of these। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी all of these, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हम किसे कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर होती है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहा गया है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में और रेडियली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. एरेक्निडोनिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड्स हैव हाउ मैनी कार्बन्स इन ईच ऑफ देम। ऑप्शन ए 16 ऑप्शन बी 16 ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 18 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20 यानी कि आर्केनिडोनिक एसिड में 20 एंड पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. ग्लिसरॉल इज डैश। ऑप्शन ए टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ऑप्शन बी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ऑप्शन सी ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन या फिर ऑप्शन डी टेट्रा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेट्रा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. लेसिथिन इज डैश। ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन्स या फिर ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड हैव सिमिलरिटी इन पोसेसिंग डैश। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी NS प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप्स, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर N और S का मतलब है नाइट्रोजन एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू डैश। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी
कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लिपिड या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लिपिड्स। जब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में फैट बढ़ गया जो एक लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? ऑप्शन ए अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी एल्केलॉइड या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्केलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी गन या फिर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ड्रग? ऑप्शन ए एब्रिन प्लस रिसिन, ऑप्शन बी विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी रिसिन एंड ग्लूकोसाइनोलेट्स। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विनब्लास्टिन प्लस करक्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 32, which one is the secondary metabolite? Option A lemon oil grass, option B sucrose, option D is maltose या फिर option D is amino acids। and इसका right answer है option A lemon oil grass। Question number 33, three important polysaccharides made up of glucose monomers। option A sucrose, lactose, maltose, option B chitin, glycogen, starch, option C starch, glycogen, cellulose, option D is RNA, DNA एंड स्टार्च। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज होमोपॉलीमर? ऑप्शन ए स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, काइटिन एंड पैक्टिन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, इंसुलिन, पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसेचराइड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन। इंसुलिन और इन्यूलिन अलग होता है। इन्यूलिन एक फ्रक्टोस है और मतलब ग्लूकोज का ही बना हुआ फ्रक्टोस है, और जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है। तो आप याद रखिएगा इन्यूलिन कोई मतलब इंसुलिन और इन्यूलिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैंने वो गलत नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35, इन एनिमल ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज डैश वाइल इन प्लांट्स स्टोर एज डैश। ऑप्शन ए प्रोटीन, स्टार्च, ऑप्शन बी स्टार्च, ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, पैक्टिन या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन, स्टार्च। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। और इसमें इस सेंटेंस को मैं आपको पूरा करके बता देती हूँ। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन वाइल इन प्लांट्स स्टोर्ड एज स्टार्च। मतलब जो एनिमल का स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन है और जो प्लांट का स्टोर्ड फूड है वो है स्टार्च। जो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके रखते हैं वो है प्लांट्स, और जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखते हैं वो है एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सेल्यूलोज इज फाउंड इन डैश। ऑप्शन ए सेल वॉल ऑफ द प्लांट, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन बी कॉटन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 37, इन्यूलिन कंसिस्ट ऑफ डैश। ऑप्शन ए ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी ओनली फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ओनली माल्टोस या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओनली फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज द हेटेरोपॉलीमर? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी इन्यूलिन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेप्टिडोग्लाइकन। बाकी काइटिन और इन्यूलिन दोनों ही होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, in polysaccharide the individual monosaccharide are linked by a bond. This bond is formed by dehydration. The bond is dash. Option A ester bond, option B glycosidic bond, option C hydrogen bond या फिर ऑप्शन D ionic bond। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन B glycosidic bond। क्वेश्चन नंबर 40, the last question of this class, the most common monomer of carbohydrate is a molecule of dash। ऑप्शन A ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी राइबोस या फिर ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर एक पॉलीमर बनता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सो गाइज, इसी के साथ हमारा आज के 40 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का सेट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप इसके PDF नोट हमारे वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से पढ़िए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज। थैंक यू।